وزیر صحت ڈاکٹر صغیر احمد نے جیو نیوز کے پروگرام ہم عوام میں جعلی ڈاکٹر سے متعلق رپورٹ کا نوٹس لے لیا ہے۔ ریلوے آپ کا نہیں ہے، بند کرو، عوام کا ہے ریلوے۔ کیمرے کے ہاتھ نہیں لگاؤ، یہ رشوت کھاتے، رشوت خور ہے۔ کیمرہ بھی ان کو بولو، ان سے لیں، ان کو بولیں باہر جائیں۔ ایسا نہ کریں کہ مجھے جیو میں اوپر بات کرنی پڑ جائے۔ تو سمجھا دیا، مجھ سے پوچھے بغیر یہاں کوئی نہیں گھسے گا۔ ہو گیا نا جو ہو گیا، جو کرنا تو پولیس میں جا، جہاں پہ مرضی ہیلپ سے جا۔ کیا کر رہے ہو؟ پروگرام ہم عوام کے ساتھ میں ہوں مسعود رضا۔ یہ وہ جملہ ہے جو میں نے آج سے 3 سال پہلے اسی مقام پر پہلی مرتبہ ادا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پروگرام ہم عوام کی ابتدا کی۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے کہا کہ بہت مشکل کام ہے، کس طرح سے معاشرے میں پھیلی ناانصافی، بے حسی، اقربا پروری، کرپشن اور عوام کو درپیش مسائل کو اجاگر کرو گے؟ ان لوگوں سے ٹکراؤ گے جو بااثر ہیں، ان لوگوں سے ٹکراؤ گے جو مافیا کے کرتا دھرتا ہے یا مافیا چلانے والے ہیں۔ میں نے اس چیلنج کو قبول کیا، میری ٹیم، میرے ادارے کی انتظامیہ نے، اور پھر سفر شروع ہوا، اور آج ہم اپنے پروگرام کی سنچری مکمل کر رہے ہیں۔ ہماری کامیابی کیا یہ نہیں ہے کہ وہ پروگرام، وہ کام جس کو کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے تھے کہ کیسے کرو گے، آج صرف میں نہیں بلکہ پاکستانی میڈیا کا شاید ہی کوئی ایسا چینل اس وقت ہو جو اس نوعیت کا پروگرام نہیں کرتا، اس فارمیٹ پہ پروگرام نہیں کرتا۔ یعنی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس دوران معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھا، بیوروکریسی کے لال فیتے کی گراہوں کو کھول کھول کر کئی کہانیاں آپ کے سامنے لایا، سوتے ہوئے حکمرانوں کو جھنجھوڑا، ان کو جگایا، مافیا سے ٹکرایا، عوام کے درمیان رہا، اور عوام کے درمیان رہتے ہوئے دکھ، درد، مصیبتوں اور پریشانیوں کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ ان کو ہر اس فورم تک لے جانے کی کوشش کی جہاں وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہو۔ بہت ساری کامیابیاں ملیں، کچھ ناکامیاں ملیں، کچھ کام ہوا ہے، بہت سارا کام ابھی باقی ہے۔ آج جب ہم اپنے 100 پروگرام مکمل کر رہے ہیں تو کیوں نہ ایک بار نظر پیچھے ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ گزشتہ 3 سالوں کا یہ سفر کئی نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ اس دوران کراچی سے کشمیر تک پاکستانی عوام کے لیے پروگرام ہم عوام ان کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کی جانب قدم بڑھانے کا ایک ذریعہ بنا۔ پروگرام دیکھنے والوں، پسند کرنے والوں اور تنقید کرنے والوں کی لاتعداد ای میلز، میسیجز، فون کالز اور خطوط ہمارے لیے ہمیشہ خوشی اور رہنمائی کا سبب رہے ہیں۔ ہم عوام نے صارفین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور اشیاء خورنوش میں ہونے والی ملاوٹ سے لے کر گندم کی خرید و فروخت میں ہونے والی حکومت پنجاب کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کرپشن کی بات کی گئی اور اربوں روپے کے اسکینڈل کا بھانڈا پھوڑا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح ایک کسان سے لے کر عام صارف تک کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ جو باردانہ دیا جا رہا ہے اس میں شدید مشکلات ہو رہی ہیں۔ دھکا نہیں دیں تو ساری بات بتا۔ باردانہ جو دیا جا رہا ہے اس میں لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے اجازت نہیں ہے آپ سے بات کرنے کی، آپ باہر چلیں پلیز۔ بقاعدگیاں ہو رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے رشوتیں لی جا رہی ہیں۔ کوئی رشوت نہیں لی جا رہی، کوئی بقاعدگی نہیں ہو رہی، آپ باہر چلیں، آپ باہر چلیں، چلیں دھکا کیوں دے رہے ہیں؟ یار آپ باہر چلیں بھائی، باہر چلیں، جاؤ باہر جاؤ بھائی، اس طرح نہ کریں پلیز۔ رشوتیں لے رہے ہیں آپ لوگ، بیٹھ کے پاکستانی ٹیلی ویژن جرنلزم کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں ہم عوام نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید تحقیق کو متعارف کرایا، جس کے ذریعے یہ بتایا کہ موڈیفائڈ اور انجینئرڈ فوڈ عوام کو دھوکے میں رکھ کر کس طرح فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہم عوام نے یہ بھی بتایا کہ دودھ دینے والے جانوروں کو لگنے والے آکسیٹوسن کے انجیکشن اور گروتھ ہارمون نہ صرف بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ عوام فروخت کیے جانے والے دودھ کی ساخت کو کس طرح غیر فطری انداز سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہم نے جانوروں کی آلائش سے تیار کیے جانے والے تیل اور اس کی فروخت سے پاکستانی عوام کو خبردار کیا۔
किस चीज़ का तेल है ये? मुर्गी कचरे का सर। मुर्गी कचरे का तेल है जी सर। किस तरह से निकलता है? ये तो सर आपके सामने टंकी लगी हुई है। बताओ ना किस तरह निकलता है? और सर हमको तो इतना मालूम नहीं, हम तो मिस्त्री आदमी, हम तो सिर्फ मशीनों को ठोका पीटी करता बस। बताओ ना तेल किधर है? बहुत बड़ी मिकदार में तेल है। हमने बीमार जानवरों को ज़िबा किए जाने और मुज़र सेहत गोश्त की फरोख्त और प्रेशर गोश्त यानी जानवरों के गोश्त में पानी भर के बेचने की मजमूम धंधे से आवाम को होशियार किया। पानी से होता क्या है? वजन बढ़ेगा। कितना वजन बढ़ता है? ये कोई 2 मन 2.5 मन। डॉक्टर तो इनको कभी भी नहीं देखता हुआ, कहीं नहीं देखता हुआ किसी जगह पर? नहीं देखते हैं। मैं इस चीज़ का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे इस किस्म का प्रोग्राम शायद ही होता होगा पूरी दुनिया में, जिस तरीके से आपने परसू किया, और ख़ास तौर पे सरकारी इदारों की जो इन आउट्स हैं उनके मैकेनिज़्म को समझना, उनके ऑपरेशंस को समझना, वो किस तरह काम करते हैं, तमाम चीज़ें, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और आपने जिस तरीके से सोशल इश्यूज़ को टेकअप किया है उससे गवर्नमेंट सेंसिटाइज हुई है, पब्लिक सेंसिटाइज हुई है। पहले जिस चीज़ों को समझ में नहीं आता था जनरल लोगों को कि ये है क्या इशू, तो आपने उसको बहुत सहल तरीके से लोगों को समझाया। जहां हमने मसालों में मिलावट की बात की, वहीं हमने गटर के पानी से काश्त की जाने वाली जहरीली सब्जियों का मामला उठाया और साइंसी बुनियादों पर यह साबित किया कि गटर के पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियों में लेड, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसे खतरनाक और जहरीले मादों की मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा होती है। हमारी इस तहकीक पर पूरे मुल्क में एक बहस का आगाज हुआ। इख्तिदार के ऐवानों में बात की गई, करारदादें पास की गईं और पूरी कौम को पता चल सका कि गटर के पानी से की जाने वाली काश्तकारी के क्या क्या नुकसानात हैं। 400 एकड़ पर ये सब्जियां काश्त की जा रही हैं और ये जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मलीर और सूबे के दीगर हिस्सों में आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त के खिलाफ करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली गई है। हमने पाकिस्तान में सबसे पहले इस नौइयत का कोई प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद मुतादिद प्रोग्राम्स आए, तो कोई फ़र्क आपने महसूस किया इस दौरान? देखिए, आप मसलन आपने ये तमाम चीज़ें स्टार्ट की थी, बाकी बाद में आपको फॉलो किया गया, मतलब यू आर द ट्रेंड सेटर्स। इससे बहुत फ़र्क पड़ा आपकी ख़ास तौर पे जो सब्जियों का था, जिसमें आपने कहा था कि पोल्यूटेड वाटर से ये तमाम सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसमें हेवी मेटल्स थे, कैडमियम था, आर्सेनिक था, लेड था, क्रोमियम था। तो लोगों को पता चला कि वो क्या इंजेस्ट कर रहे हैं, तो लोगों ने फिर वहाँ से लेना तर्क किया। फिर गवर्नमेंट भी हरकत में आई, उसने पानी वहाँ से बंद किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा शोबा है जिससे हर आम आदमी का वास्ता पड़ता है। इस शोबे की ज़बूहाली पर भी हमने कई प्रोग्राम नशर किए। पहले तो फिर भी थोड़े बहुत कंफर्टेबल थी सीटें, अब तो बहुत ज़्यादा तंग कर दी हुई हैं और कंडीशन भी इतनी बेहतर नहीं है। 90% से ज़्यादा गाड़ियों की जो सीटें क्या उसमें तो आप खड़े भी हो तो आपका सर जो है सबसे टकराता है। आप मेहरबानी। हाँ, ये क्या कर रहे हैं यार? क्या कर रहे हो यार? सर, मार्च से लेकर अब तक आपने क्या किया? मार्च से लेकर अब तक हमने अपना बहुत सारे रूट परमिट्स वगैरह दिए हैं गाड़ियों को। मुल्क में रेलवे के निज़ाम और इसकी मुबैना करप्शन पर ही नहीं बल्कि शहरों में चलने वाली बस, रिक्शा और टैक्सी सर्विस पर भी प्रोग्राम नशर किए गए। फिटनेस डिपार्टमेंट की कलई खोली गई, ट्रांसपोर्ट माफिया से टक्कर ली गई और आरटीए जैसे महकमों की हालत जार दिखाई गई। और सबसे बढ़कर ये कि आवाम की हर रोज की अजियत और तकलीफ उनकी अपनी ज़बानी सुनी गई और हुकूमतों और हुकूमती वुज़रा के सामने पहुंचाई गई। आपके बस ड्राइवर्स के पास ना तो लाइसेंस होता है, ना फिटनेस होती है, ना कागजात होती हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं कि सब कुछ चालान पर किया हुआ है। लाइसेंस, फिटनेस ये मेरे पास। आपके पास है क्या? परमिट कैंसिल करें? परमिट तब कैंसिल करें जब हमारे पास फोर्स। वैसे तो अगर कोई कंप्लेन आता है तो हम डीआईजी को भेज देते हैं और अपने आरटीए पीटीओ को वहाँ लगा लेते हैं। आप कोई कंप्लेन दें? सर, खुलेआम हो रहा है। मैं 3 प्रोग्राम कर चुका हूं। इस तरह तो मैं कह रहा हूँ आपने नहीं देखा इस तरह। अच्छा, ये बात आपकी नॉलेज में है? सब चीज हमें पता है जो आप कह रहे हैं। आपके एमबीए कहाँ पर है? उनको तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए। इस वक्त नहीं होना चाहिए। किस वक्त होना चाहिए? किस वक्त होना चाहिए? हमें परमिशन नहीं है
परमिशन नहीं है कि भाई आप इंटरव्यू कोई भी नहीं देगा, हम नहीं दे सकते। हम अवाम ने मेहनत कशों के साथ होने वाले जुल्म और सोशल सिक्योरिटी के मामलात उठाए। हमने दिखाया कि सोशल सिक्योरिटी ना होने की वजह से एक मेहनत कश और उसका खानदान किस हद तक मुतासिर होता है। जब से इसकी हड्डी टूट गई है ना, काम पे नहीं जाते, हम घर में ही रहते हैं। एक बच्चा है, उसका भी इंतकाल हो गया, इसकी वजह से, पैसों की वजह से इंतकाल हो गया। प्रोग्राम हम अवाम ने इंतजामिया और पुलिस के साथ होने वाली ज्यादतियों पर जहां आवाज उठाई, वहीं ये भी दिखाया कि इंतजामिया और पुलिस हुकूमत के अवाम के मुफाद में लिए गए फैसलों को किस तरह अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं। और इसकी एक मिसाल सिंध में गुटखे की फरोख्त पर हुकूमती पाबंदी के बावजूद गुटखे की तैयारी और खुलेआम फरोख्त की शक्ल में हमारे सामने आई। गुटखे से मुतालिक नशर किए गए प्रोग्राम्स में एक तरफ जहां हमने गुटखे के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से अवाम को आगाह किया, वहीं करप्ट पुलिस एहलकारों और इंतजामिया को भी बेनकाब किया। ये वो तंबाकू है जो इस गुटखे में इस्तेमाल होगा। ये अंदर से लॉक है, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई दूसरी एंट्रेंस भी है। और ये दरवाजा तोड़ दिया इन्होंने। और ये वो जगह है जहाँ पर बाकायदा पैकिंग मशीन लगी है। यहाँ पर इसके बजाय कोई और ख़तरनाक काम हो रहा होता तो भी आपको पता नहीं होता? नहीं, बिल्कुल पता होता। अगर है ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, हम कोशिश करते हैं सारी तमाम चीज़ें। गुटखा एक ऐसा मामला है जिस पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, उसके फॉलोअप भी किए और गवर्नमेंट ने ये तहैया किया था कि उसे गुटखे पर पाबंदी लगानी है। मगर गवर्नमेंट की तरफ से लगने वाली पाबंदी दरअसल गुटखे पर नहीं बल्कि उन इदारों के रेट बढ़ाने की पाबंदी मालूम हुई जो इसके गुटखा बेचने के एवज रिश्वत वसूल करते हैं। यानी जब इस पर सख्ती की जाती है, गुटखे की रिश्वत में इजाफा हो जाता है और जो इसकी बीट होती है वो बढ़ जाती है और फिर इस पर नरमी कर दी जाती है। आवाम को मुसलसल बेवकूफ़ बनाया गया, धोखे में रखा गया और कभी कोई संजीदा एक्शन नहीं किया गया। नतीजा ये है कि आज भी गुटखा खुलेआम हर जगह बिक रहा है। आप कमिश्नर कराची भी रहे और एडमिनिस्ट्रेटर KMC भी रहे। इस दौरान जब भी हमने कभी अवामी नौइयत के मामलात को उठाया जो आपके डोमेन में आते हों और उस पर आपने रिस्पॉन्ड भी किया, आपको महसूस होता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स से कोई फ़ायदा होता है या बस एक वक्त गुजारने का मशगला है? देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी आबादी 2 करोड़ से तजावज़ कर गई है। जो ओवरऑल कराची की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और जो कराची का म्यूनिसिपल सेटअप है, तो इसमें किसी भी सरबराह के लिए मारूजी हालात में मुमकिन ही नहीं होता कि इस पूरे शहर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ख़वा वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं या अमूमी नौइयत की हैं, उन सब की उस तक पहुंच हो सके, उन सब को वो जान सके। तो जब इस किस्म के प्रोग्राम आपने किए तो उससे यकीनी तौर पर एक बिल्कुल डिफरेंट और सही पर्सपेक्टिव हमारे सामने आया। मैं समझता हूँ कि ये वो प्रोग्राम्स हैं कि जिसके ज़रिए जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंसिटाइज होती है और उनको उन चीज़ों को जानने का मौका मिलता है कि जो चीज़ें नॉर्मली इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल होती हैं या अगर मालूम भी होती हैं तो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती। गुटखे के प्रोग्राम में आप देखें कि जब गुटखे का प्रोग्राम हुआ तो उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में गुटखा न सिर्फ ये है कि पकड़ा गया बल्कि उस पर कदगन भी लगी। तो मैं समझता हूँ कि जो परवरिश लोह कलम का काम है ये बहुत अहम है और ये करते रहना चाहिए।